हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 22 अगस्त। शक्ति सदैव बाईं ओर होती है। श्रीमती राधा रानी भगवान की बाईं ओर होती हैं और इसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान की बाईं ओर होती हैं। इसी प्रकार हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, राधा रानी अथवा लक्ष्मी जी जैसी नहीं। तो हमें स्वयं को सदैव भगवान की बाईं ओर रखना चाहिए और उनकी भुजाओं अथवा सेना के रूप में कार्य करना चाहिए। ब्रह्मानंद को पत्र 22 अगस्त 1968। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। People, they sometimes say, "Can you show me God? Have you seen God?" These questions sometimes we meet. So the answer is here. Yes, you can see God. Everyone can see God. I am also seeing God. But there must be the qualification. Just like God is there. Suppose a motor car is there. Something is wrong there. Everyone is seeing. But one engineer or mechanic, he sees differently. Therefore we have to go there. What is wrong in this car? It is not running. He immediately touches some machine part, it runs. So these rascals, they do not know that how I can see God if I have not the qualification. The machine has gone wrong. I am seeing the machine. And the engineer, the mechanic, he is also seeing the machine. But he is seeing and my seeing is different. He is qualified to see. Therefore, when the machine has gone wrong, immediately he touches some part, it runs. So, if for a machine we require so much qualification, and we want to see God without any qualification, just see the fun. Without any qualification. Rascal, they are so rascal, so fool, that they want to see God with their nuisance qualification. Krishna says in the Bhagavad Gita, Nahang prakasa sarvasu yogamaya samabritaha. I am not exposed to everyone. Yogamaya is covering. So how you can see God? But this rascaldom is going on. That can you show me God? Have you seen God? God has become just a plaything. Here is God, He is incarnation of God. Namang duskitinam mudha prapadante naradhama. They are sinful, rascals, fools, lowest of the mankind. They inquire like that. Can you show me God? What qualification you have acquired that you can see God? Here is the qualification. What is that? Sat tat saddadhanamanayo. One must be first of all faithful. Faithful. Saddadhana. He must be very much eager to see God actually. Not that as a proclivity, frivolous thing. Can you show me God? A magic, just like God is a magic. No, he must be very serious. Yes, if there is God, we have seen, we have been informed about God. So, I must see. There is a story in this connection. It's very instructive. Try to hear. One professional reciter was reciting about Bhagavat, and he was describing that Krishna, being very highly decorated with all jewels,
he is sent for tending the cows in the forest. So there was a thief in that meeting. So he thought that why not then go to Vrindavan and plunder this boy. He's in the forest with so many valuable jewels. I can go there and catch the child and take all the jewels. That was his intention. So you are serious? I must find out that boy. Then in one night I shall become millionaire. So much jewelry. No. So he went there. But his qualification was that I must see Krishna. I must see Krishna. That anxiety, that eagerness made it possible that in Vrindavan he saw Krishna. He saw Krishna the same way as he was informed by the Bhagavad Gita. Then he said, oh, you are so nice, boy, Krishna. So he began to flatter. He thought that flattering, I shall take all the jewels. So when he proposed his real business, so may I take some of these ornaments? You are so rich. No. My mother will be angry. I cannot. Krishna is a child. So he became more and more eager for Krishna. And then, by Krishna's association, he has already become purified. Then at last Krishna said, all right, you can take. And then he became a devotee immediately. Because by Krishna's association, somewhere or other, we should come in contact with Krishna. Somewhere or other. Then he will be purified. Kaman, Bhayad, Desad, that's the gopis. The gopis came to Krishna being captivated by his beautiful feature. They were young girls and Krishna was so beautiful. So actually they came to Krishna being lusty. But Krishna is so pure that they became first-class devotees. There is no comparison of their devotion because they love Krishna with heart and soul. That is the qualification. That is the qualification. They love so much Krishna that they didn't care for family, for reputation. When they are going at dead of night, Krishna's flute was there and they are all fleeing. Their father, their brother, their husband, where you are going? Where you are going in this dead of night? They didn't care. They neglected their children, their family, everything. We must go to Krishna. So this is required. We must be very, very eager so that many gopis who were forcibly stopped going to Krishna, they lost their life. Just see how much eager they are. So this eagerness is wanted. Then you can see God. Either you become lusty or a thief or a murderer, whatever it may be. Somehow or other, if you develop this eagerness that I must see Krishna, then Krishna will be seen. So, here is the first thing is how much eager you are to see Krishna. Krishna will respond. If you are actually eager to see Krishna, the reason may be different. Either you are lusty or to steal his ornament or somewhere or other you become attracted to Krishna, then your business is successful. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। देवान् भावयतानेन
ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम अवाप्स्यतः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देवताओं के लिए यज्ञ करो, जैसे पिछले श्लोक में बताया, उससे आपको क्या मिलेगा? फैसिलिटी मिलेगी। तो आप देवताओं के लिए यज्ञ करो, देवता आपको फैसिलिटी देंगे, इसमें देवताओं का भी पोषण हो जाता है, आपका भी पोषण हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देवताओं की पूजा करनी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता भगवान है। भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, जैसे प्रधानमंत्री है देश के, वो आपसे कहते हैं कि आप लोग अपना अपना इनकम टैक्स भरिए। आप कमा रहे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी क्रिएट कर रही है, अब ऑफिस जाने के लिए रोड का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हमको टैक्स तो भरना पड़ेगा इनकम पे। अब आप बोलेंगे ठीक है, हम सब जाएंगे सारे भारतवासी और प्रधानमंत्री को हाथ में टैक्स दे देंगे, लिफाफा। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री जी का ऑफिस जो है पूरा लिफाफों से भर जाएगा आपका, और गिनने में टाइम लगेगा। तो फिर ठीक है, ऑनलाइन कर देंगे। तो उसमें फिर सिस्टम बनाया, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। हर राज्य में इनकम टैक्स कमिश्नर होंगे, बड़े शहरों में फिर इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, वो चेन हो। तो प्रधानमंत्री ने निर्धारित किया कि ठीक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हर शहर में, और वहां पे ऑफिस है, वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर्स बैठते हैं। आपका जो भी इनकम टैक्स बनता है उनको जाके दे दीजिए और आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वैसे ही भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए सब भक्तों को सेवा दी है। तो जो देवता है वो भगवान के भक्ति है, भगवान ने उनको सेवा दे के रखी है कि आपके पास मनुष्य आएंगे, यज्ञ करेंगे और आपको ये सब भेंट चढ़ाएंगे, और आपको नहीं लेना है। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या अपने जेब में रखेगा आपका इनकम टैक्स? आपका इनकम टैक्स उसका इनकम नहीं बनता है, वो इनकम टैक्स उसको आगे बढ़ाना होता है, तब उसको सैलरी मिलती है। तो भोक्तारा में तो बस आप कृष्ण ही सारा इनकम लेते हैं। ये देवता क्या करते हैं? कृष्ण के बिहाफ पे, कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वो स्वीकार करते हैं आपसे और जमा कर देते हैं कृष्ण के पास, और फिर भगवान आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं देवताओं के माध्यम से। बारिश मिलेगी, धूप मिलेगी, हवा मिलेगी, ये सब फैसिलिटी भगवान देवताओं के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं, ये एक रिलेशनशिप, इसको सिम्बियोसिस कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, कि आप देवताओं को दीजिए और वो आपको देंगे। और ये सारा जो हो रहा है, ये जो पूरा चक्र चल रहा है, किसके अंडर में? भगवान के निर्देश में चल रहा है। यज्ञपति तो कृष्ण है। सारे यज्ञ आप देख लीजिए, कोई भी देवता का यज्ञ करते हैं लोग, तो उसमें भगवान विष्णु का ही नाम जप होता है, क्योंकि भगवान को दिए बिना तो यज्ञ पूरा होगा नहीं। वही तो यज्ञेश्वर है, वो यज्ञपति है। तो वो तो एक फैसिलिटी बनाई, इसका मतलब ही नहीं कि देवता भगवान है, हाँ, और हमको सिर्फ उन्हीं का करना नहीं, भक्ति कृष्ण की करनी है। भगवान कृष्ण है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे गणपति हो, चाहे अन्य देवता हो, इंद्र चंद्र सूर्य, कोई भी हो, ये सब भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो आप इनके माध्यम से भगवान तक कनेक्ट करना, इसीलिए भगवान का भक्ति डायरेक्ट करना है, श्रवण कीर्तन डायरेक्ट भगवान का करना है। उसके लिए जरूरी नहीं है आपको, अभी आज तो यज्ञ कर भी नहीं सकते, ना हमारे पास ब्राह्मण है, ना हमारे पास सामग्री है, इतना फैसिलिटी नहीं है। तो इसीलिए अभी भगवान ने क्या किया? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संकीर्तन यज्ञ करेगा। संकीर्तन यज्ञ ने भगवान कृष्ण का नाम। तो यहाँ पे एक्चुअली आप डायरेक्ट कृष्ण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कृष्ण के लिए यज्ञ करेंगे तो कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो कृष्ण के लिए डायरेक्ट यज्ञ कर दिए, लेकिन फैसिलिटी तो देवताओं से ही आती है। हाँ, इंद्र बारिश देंगे, सूर्य की किरण देंगे, वायु मिलेगा, ये सब तो फिर देवता तो नाराज हो जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे घर में माता का पूजा होता है, शिव जी का पूजा होता है, गणपति पूजा होता है, अभी हम कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होगा। अभी सिस्टम चेंज हो गया है, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई,
तो आपको इनकम टैक्स भरने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन जमा कर, तो ऐसा थोड़ी कि इनकम टैक्स ऑफिसर के अकाउंट में जा रहा है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने गवर्नमेंट का अकाउंट खोल रखा है, डायरेक्ट उधर जा रहा है। यही कलयुग है ना। तो कलयुग में डायरेक्ट भक्ति करिए कृष्ण, आपको ऐसे 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 घूम के जाने की जरूरत नहीं। इसमें आपके लिए भी फैसिलिटी, जैसे गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बनाई आपके लिए, ऐसे ही भगवान ने भी फैसिलिटी बनाई ना, कि छोड़ो कहाँ इधर उधर जाओगे, डायरेक्टली www.krishnabhakti.com डायरेक्ट खोलो। कैसे खोलेगा? हरे कृष्ण महामंत्र से, भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के सुन के, भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता सुन के हम डायरेक्ट भक्ति कर सकते हैं कृष्ण। तो बीच में लाने का कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सम्मान न करें, नहीं। आप जा रहे हैं, किसी देवता का मंदिर आया, गणपति जी का मंदिर आया, आप प्रणाम कर सकते हैं कि गणपति जी आप कृष्ण का कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए तो मैं भी भगवान कृष्ण का भक्ति करूं। तो कृष्ण के लिए डायरेक्ट भक्ति करने से देवता नाराज नहीं होंगे, वो तभी भी आपको फैसिलिटी देते रहेंगे, उल्टा अच्छे से देंगे। अभी संसार में क्यों इतना उत्पात मच रहा है, उथल पुथल हो रहा है? क्योंकि कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कितने सारे केसेस हो रहे हैं, सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। क्यों ये उत्पात मच रहा है? क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं हो रही। तो देवताओं और मनुष्यों के बीच में ये रिलेशनशिप, ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया। लेकिन अब भगवान कलयुग में आते हैं, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और कहते हैं कि आप डायरेक्ट हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और डायरेक्ट भक्ति। इसमें एक वेदों का श्लोक आता है, उसको समझते हैं, क्योंकि कैसे ये कार्य करेगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, यहाँ वेदों में बताया गया कि आहार शुद्ध हो। सबसे पहले अपना आहार को शुद्ध कीजिए। इसीलिए भगवान को भोग लगा के खाना है, इससे आहार शुद्ध होगा। सैनिटाइज करने से आहार शुद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप चावल लेके आए, सब्जी लेके आए हो, कुछ लोग नमक पानी में डाल के रखते हैं सब्जियों को कि शुद्ध हो जाए, तो वो ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल सैनिटाइजेशन चाहिए, उसको बोलते हैं शुद्ध होना। तो जब आप बाहर से सामग्री लाते हैं, भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाइए, इससे आपका आहार शुद्ध होगा। जब ये आहार को आप खाएंगे, प्रसाद को पाएंगे आप, तो क्या होगा? आपका अंदर चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध होगी, बुद्धि मस्तिष्क के जो फाइन टिश्यूज हैं वो शुद्ध होंगे। वो शुद्ध होंगे तो आपको फिर पता पड़ेगा कि हाँ, ये संसार की चीज है और हमको कहाँ जाना है? मोक्ष। तो संसार से आसक्ति कम होगा और आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तब जाके आपको असली आपका जो घर है या फैसिलिटीज है या सुख है या आनंद है, तब वो परमानेंट मिलेगा। अभी कैसा टेम्पररी, उसके बाद परमानेंट मिलेगा। अभी क्या होता है, ठीक है, आप जिस घर में जन्मे हैं मृत्यु तक उस घर में रहे, लेकिन मृत्यु के बाद तो दूसरे घर में जाना पड़ेगा, दूसरा शरीर, दूसरा घर, तो बार बार चेंज करना पड़ता है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। फिर आप अच्छा वाला विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, परमानेंट एड्रेस, कृष्णदास या कृष्णदासी, वैकुंठ निवास नंबर, जो भी आपका एड्रेस बनेगा आप डाल दीजिए, वो होगा आपका परमानेंट विजिटिंग कार्ड। वो कभी चेंज नहीं होगा। आनंद और सुख हमेशा आपके साथ चलेगा। हरे कृष्ण।